Hello, and welcome to Socio Talks, a podcast where we talk to leaders, innovators, and change makers in the social and impact sector. This is the first episode of Socio Talks where we talk to Mr. Raghav Sharma, who is the founder of Carbon Fusion. So, Yes. before jumping in to a series of questions, I would like to know a brief about yourself and your educational background. Basically, I've done my schooling in Noida through commerce background, and I've done bachelor's in computer application from CCSE University. So I've done my graduation. I've completed my graduation in 2017, and after which I worked for 2 years, almost 2 years, and after which I started Carbon Fusion. So like my schooling is from commerce background, and uh, by graduation, I'm a computer professional. So, so they're different. I mean, very versatile sort of background Hmm. as per my work that I'm doing right So Raghav, how did you end up from being a you know computers background and a commerce background to a totally an engineering background, right? Creating things by your now. own Yes. hand. ये किस तरीके से आप इधर आ गए? So basically, अगर अगर ऐसे क्वेश्चन को दिया जाए कि um, how a computer professional ends up being doing engineering things. So it was more of like uh, when like when I was in 10th. So basically, science was something that I wanted to opt, but marks nahi tha. So because of which I ended up like going with commerce. जिसके बाद it was more of a कि going with the flow कि commerce के साथ साथ computer science था computer science के साथ I did my BCA but um, engineering was something जो कि it was sort of my hobby. So basically from 11th or 10th class I was doing some small projects DIY stuff and all those projects and मुझे computers में मजा नहीं आ रहा था. So basically, I ended up with engineering after my graduation. Like I used to do some small projects जब मैं ऑफिस करता था और मेरा ऑफिस ज्वाइन करने का मोटिव ही था कि मैं अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर पाऊँ. So basically, yeah, after which I didn't like the job that I was doing. So I went for a business, and in that I started making machines initially. So I got some prototypes from the internet, and it was more of that, like more of a hobby thing that later like became my passion or my bread and butter after that. So you mentioned these projects, small projects. तो ये projects क्या Yes. थे? ये किस specific area के अंदर ये projects होते थे आपके? माय प्रोजेक्ट्स जो डिपेंड करते थे वो बेसिकली मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स होते थे. फॉर इंस्टेंस हमने 11th क्लास में गो कार्ड बनाई थी मैंने और मेरे फ्रेंड ने. तो उसमें बेसिकली दैट टाइम मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कि कुछ कर सकते हैं इस उसमें. और फिर वो प्रोजेक्ट्स थोड़े और ज्यादा बड़े होने लग गए तो हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाया था. फिर उसके अलावा जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं विंड टर्बाइंस एंड ऑल दोस थिंग्स तो हम्म. हम वो सब भी बनाते थे. तो इस तरीके से वो जो थोड़ा जो बहुत ही छोटी सी हॉबी थी फ्रॉम DIY स्टफ तो वो एक बड़ी होते होते मैकेनिकल थिंग्स में चली गई सारी. तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते थे. So, how did that love for engineering change into something relevant for the environment? कार्बन फ्यूजन का जो बर्थ है वो किस तरीके से हुआ फिर इससे? कार्बन फ्यूजन का बर्थ इस तरीके से हुआ कि एक तो जो मैकेनिकल बैकग्राउंड था वो ऑल द टाइम ज्यादा हावी रहता था एज कम्पेयर टू जब आप जॉब करते हो तो. और सेकंड थिंग, जॉब में मजा नहीं आ रहा था और जॉब करना भी नहीं था. तो सिंस कॉलेज माय माइंडसेट वाज टू
डू सम बिजनेस, और एक एक एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन का ऑलवेज मतलब एक एक था कि हाँ एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है. सो बेसिकली it combines both the thing, like my hobby as well as uh, participating or doing something for the environment. तो उस तरीके से I ended up with like with the business idea, जिसमें हम लोग बिजनेस के साथ साथ हम अपना मैकेनिकल बैकग्राउंड भी रखते हुए हम लोग ब्रेड एंड बटर भी हम लोग उसमें वो कर रहे हैं. जिस तरीके से हम लोग ने फिर कार्बन फ्यूजन बनाया है, जो कि एक रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग कंपनी है. तो बेसिकली उस तरीके से कार्बन फ्यूजन फॉर्म हुई थी. तो थोड़ा कार्बन फ्यूजन में जो मेजर वर्क एरिया है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कार्बन फ्यूजन में एक्चुअली आप क्या एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, सो कार्बन फ्यूजन थोड़ा वर्सेटाइल है. कार्बन फ्यूजन में हम लोग मशीन्स भी बनाते हैं जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में हेल्प करती हैं. इसके अलावा हम प्लास्टिक भी रिसाइकिल करते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओज हो गए. तो हम वो प्लास्टिक लेके आते हैं. प्लास्टिक लेके आने के बाद हम उसको प्रोसेस करके हम एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस हम बेंचेस बनाते हैं, हम चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, लाइक मोस्टली पब्लिक फर्नीचर और समथिंग फॉर पब्लिक स्पेस. फिर हम उसको इंस्टॉल करवाते हैं इन द सोसाइटी और स्कूल्स. तो इस तरीके से हमारा वर्किंग रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड मशीन्स जो कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करती हैं. तो इस तरीके से कार्बन फ्यूजन का वर्क फ्लो रहता है. सो राघव, अभी मार्केट के अंदर हम काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज देख रहे हैं जो सिमिलर वे में वर्क करती हैं, जो प्लास्टिक्स को कलेक्ट करती हैं, फिर उन्हें थोड़ा प्रोसेस करती है एंड देन फर्नीचर या कोई भी प्रोडक्ट के अंदर उनको कन्वर्ट करती है। सो हाउ डू हाउ डज कार्बन फ्यूजन डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट? ओके, सो कार्बन फ्यूजन, हाउ कार्बन फ्यूजन डिफरेंशिएट्स, तो बेसिकली होता यह है कि हर इंसान की हैंडराइटिंग अलग होती है. सो बेसिकली इस तरीके से हम जो लिखते हैं वो हम अपने स्टाइल में लिखते हैं. सो हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, या इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर मेकिंग इट. सो बेसिकली जो भी हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं मार्केट में, वो इस नजरिए से करते हैं कि उसका लाइफ स्पैन एटलीस्ट 5 to 10 years हो. उसके बाद जो उसका डिजाइन एस्पेक्ट है, दैट शुड बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज कन्वेंशनली गोइंग ऑन दिस इन द एनवायरनमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट ना वो करे. और उसके अलावा जो लास्ट फैक्टर रहता है वो डिजाइन फैक्टर रहता है, कि जो डिजाइन होता है वो इट शुड बी कंफर्टेबल, और इट शुड बी समथिंग जो कि एक वैल्यू ऐड करे. लाइक जहां भी उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, जो भी उसका पर्पस है, तो उस तरीके से हम लोग मतलब एक बेटर क्वालिटी डिलीवर या फिर एक डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं एज एज कम्पेयर टू जो बाकी लोग डिलीवर कर रहे हैं. या फिर एंड वन मोर थिंग, इट्स मोर ऑफ अ एनवायरमेंटल थिंग देन द बिजनेस थिंग. तो हम लोग एनवायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू मेकिंग प्रॉफिट्स. तो इसमें ये भी एक चीज है जो हम शायद बाकी लोगों से थोड़ा अलग करके चलते हैं. सो यू मेंशन कि आप इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के चलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कि इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि एट द एंड वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं प्लास्टिक्स को एंड देन वो यस, कन्वर्ट कर रहे हैं। आप भी सिमिलर ही चीज कर रहे हो, लेकिन ये इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट आपके बिजनेस में ज्यादा कैसे है? बेसिकली एक होता है एथिक्स, होता है एक, कि जिसमें आप जो भी प्रोडक्शन फेज होता है या फिर जो भी एक एक डिफरेंट फेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे आप प्रोडक्ट तो अच्छा बना के दे रहे हो या फिर प्रोडक्ट में एक इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, बट एट द अदर एंड इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट. तो बेसिकली अगर जैसे ऐसा होता है कि कोई भी अगर फ्लोर टाइल्स होता है, फ्लोर टाइल्स को इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें से कम माइक्रो प्लास्टिक निकले, या फिर इस मटेरियल से बनाया जाए कि कम से कम माइक्रो प्लास्टिक निकले. यू कैन ऐड अ प्रीमियम टू इट, बट वो फिर माइक्रो प्लास्टिक फर्दर दोबारा एनवायरनमेंट में एंड अप हो रहा है या फिर वो दोबारा मिक्स हो जा रहा है.
तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, और फॉर इंस्टेंस अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन में आप जो भी प्लास्टिक यूज कर रहे हो, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है। तो और अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो, प्लास्टिक में सैंड मिक्स कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ आजकल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो फर्दर रिसाइकलेबल नहीं होता है कंप्लीटली। तो वो उसका लाइफ साइकिल वंस वंस है, लाइक एक बार वो बन गया, उसके बाद वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के साथ ही रिसाइकिल हो सकता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल है जिसका सेम सैंड कंपोजिशन है या फिर सेम कंपोजिशन वो बनाया गया है। तो हम्म। हम उन चीजों को अवॉइड करते हैं, जिससे फर्दर जब वो प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन खत्म हो, तब वो इजिली उसको प्रोसेस कर पाए, कोई भी प्रोसेस कर पाए। तो हम उस तरीके से काम करते हैं। Okay, so basically, let's say any product that is made by carbon fusion, उसका लाइफ स्पैन एंड होता है, तो वो वापस सेम ही लूप के अंदर चले जाएगा एंड यस। किसी और जगह पे नहीं जाना है बेसिकली। नहीं, बेसिकली जब भी उसका लाइफ स्पैन एंड होगा, वो हम्म। तभी उतना ही वैल्यू कंटेन करेगा कि उसको कोई भी रिसाइकलर एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस करने के लिए रेडी रहेगा। तो ये डिफरेंस है। सो राघव, कुड यू टेल अस अबाउट कि ये जो बिजनेस के आप अंदर आपने ट्रांजिशन किया और रिसाइकल प्लास्टिक के बिजनेस के अंदर आया, सो इसमें कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इनिशियली फेस करनी पड़ती हैं? मेजर इनिशियल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट मेनली उसमें से ये होता है कि सोर्स ऑफ द प्लास्टिक, मतलब जहां से आपको प्लास्टिक मिलने वाला है। प्लास्टिक हर जगह है, बट इट इज डिफिकल्ट टू गेट इट इन द राइट स्टेट। मतलब ऐसा होता है कि अगर नाले में प्लास्टिक गिरा हुआ है, उसको निकालना, उसको वॉश करना, तो ये सब अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप करना चाहोगे, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड डिफिकल्टी वुड बी कि सारा प्लास्टिक मिक्स होता है विद द वेट वेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जब हमने इनिशियली शुरू किया था, तो हमारे पास कभी कभार जो वेस्ट आता था, दैट मिक्स्ड अप विद द वेट वेस्ट, एंड वो डिफिकल्ट होता था प्रोसेस करना। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होता है कि अगर प्लास्टिक के अंदर है तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर फर्दर, मतलब आपको थोड़ा स्किल्ड लेबर चाहिए होती है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो इस तरीके से चैलेंजेस एक्चुअल में हर फेज पे हैं। तो वो लाइक उसको हैंडल करना पड़ता है कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो यूजुअली जो चैलेंजेस आपने ये फेस किए, तो हाउ डिड यू मिटिगेट दोस चैलेंजेस? आप किस तरीके से सोर्स करते हो प्लास्टिक्स की वो उतनी बेसिक उतना गंदा नहीं है या सेग्रीगेटेड है, तो हाउ डू यू डू दैट? सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ से भी प्लास्टिक सोर्स करते हैं, हम वहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का पर्पस रहता है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट होती है कि आप प्राइवेट स्पेस को अलग रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम प्रैक्टिस लोगों से करवाते हैं कि उसको वॉश करके देन दे कलेक्ट इट एंड देन दे सेंड इट। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका एक एक छोटा सा आपका जो स्टेप है वो स्किप हो जाता है, कि आपको अगर वो वॉश है तो उसको वॉश नहीं करना पड़ता है दोबारा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि जो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जो साथ में आता था वो नहीं आता है फिर। तो इस तरीके से हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन से उठा लें, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी साफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इधर आप उसको सेपरेट करके दो और ट्राई टू गेट इट क्लीन जितना पॉसिबल है। तो वहां पे वो अवेयरनेस वर्कशॉप और वो सब हेल्प करता है कि आप कलेक्ट करो। इसके अलावा उनको मोटिवेशन करना इज वन वन मोर थिंग दैट वी ट्राई, कि उनको मोटिवेट किया जाए कलेक्टिवली, मतलब सिंगल पर्सन को नहीं। सिंगल पर्सन को कभी कभार होता है, बट कलेक्टिवली, फॉर इंस्टेंस अगर सोसाइटी से आप प्लास्टिक कलेक्ट करते हो, तो काफी टाइम से आ रहा है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, तो वहां पे आपने एक पब्लिक बेंच इंस्टॉल किया, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड कि हाँ, लाइक वी शुड गेट दिस थिंग डन लाइक मोर ऑफन। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सो लेट्स कम इनटू द करंट स्टेट ऑफ योर बिजनेस कि Okay. यूजुअली लेट्स से कोई भी प्लास्टिक आपके पास आ रही है, तो इफ यू कुड वॉक अस थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ अ प्लास्टिक रीचिंग योर facility and then getting converted into a furniture. ओके। सो प्लास्टिक हमारे पास जैसे अलग अलग सोर्सेज से आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक को सबसे पहले सेग्रीगेट करते हैं।
सेग्रीगेट बेसिकली प्लास्टिक 7 टाइप्स का होता है, और हर टाइप का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो हर प्रॉपर्टीज का से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक प्लास्टिक होता है जिससे फर्नीचर आइटम्स बन सकते हैं, हम उनको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन का एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर हम उसको सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको कलर के हिसाब से भी अगर सॉर्ट कर पाए तो बेसिकली उससे क्या होता है कि हम फर्दर उसको एक डिजाइन फैक्टर ऐड कर पाते हैं। तो सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको श्रेड करते हैं। श्रेड करना इज बेसिकली टू कट इट इनटू डिफरेंट पीसेस, लाइक वेरी स्मॉल पीसेस, जो कि बेसिकली इजिली आप फीड कर सकते हो अपनी मशीन्स को, फर्दर मशीन्स को। श्रेड करने के बाद हम उसे वॉश करते हैं, सो दैट उसमें से सारा इम्प्योरिटीज और कंटामिनेशन थोड़ा अलग होता है। वॉश करने का पर्पस ये होता है कि आप जितना आपका प्लास्टिक क्लीन होगा उतना बेटर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग द प्लास्टिक। वंस वॉश्ड, उसके बाद देर आर डिफरेंट मशीन्स दैट वी यूज टू मेक, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर मेकिंग फर्नीचर, देन वी विल फीड इट टू एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर से हम लोग लंबर्स बनाते हैं। लंबर्स इज जस्ट लाइक अ बैम्बू। यू कैन इमेजिन लाइक कि एक बैम्बू एक प्लास्टिक से बना हुआ है। सो वो एक लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, हम उसको वैसे देते हैं। इसके बाद हम उनको कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसे थोड़ा इधर बेंड करते हैं, या फिर हम जिस भी फर्नीचर का शेप होता है हम उसके उसको असेंबल करते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्लास्टिक आता है हम उसको एक फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। आपने मेंशन किया कि आप श्रेड करने के बाद उसको वॉश करते हैं प्लास्टिक को। यस। सो जस्ट अ यस। जनरल क्वेश्चन कि सेग्रीगेट करने के बाद हमें वॉश नहीं करना चाहिए उसको पहले? बेसिकली होता क्या है कि प्लास्टिक का क्या होता है कि वो एक वॉल्यूमेटिक मटेरियल है। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर एक एक बिस्लरी की बॉटल है, पानी की बॉटल है, उसको अगर मैं वॉश करना चाहूंगा तो मेरे को 10 बॉटल वॉश करनी है तो मेरे को एक बड़ा ड्रम चाहिए होगा, है ना। बट अगर मैं उसको स्ट्रेट कर दूंगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने के बाद मैं 100 बॉटल एक ड्रम में कर सकता हूँ। तो दिस द रीजन कि उसको श्रेड करके। और सेकंड थिंग ये होती है, अगर मान लो ये तो बिस्लरी की बॉटल है, अगर कोई तेल की बॉटल होती है, लाइक ऑयल बॉटल जो होती है बेसिकली, अगर उसको मैं श्रेड नहीं करूंगा तो उसके अंदर से तेल निकाला, बहुत अंदर से तेल साफ करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस द रीजन कि आप उसको श्रेड करके वॉश करते हो, सो दैट आपका एक प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है उससे। ये जो एंड टू एंड प्रोसेस है, लेट्स से अगर मैं एक चेयर बना रहा हूँ, राइट, तो मुझे कितना टाइम लगता है फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कलेक्शन टिल हम्म। द एंड प्रोडक्ट? सी, अगर प्लास्टिक आपके पास है ऑलरेडी, इफ यू नॉट लाइक, अगर आपके पास हम्म। ऑलरेडी अवेलेबल है, देन इट वुड टेक, I would say, 2 hours to, like, lump sum 2 hours to make a chair. बेसिकली उसमें श्रेडिंग, वॉशिंग और एक्सट्रूजन और असेंबली, ये सारा प्रोसेस है। तो इसमें आपके 2 से ढाई घंटे में आपकी एक चेयर खड़ी हो जाएगी बहुत प्यार से। तो जो हमारा वॉशिंग का प्रोसेस है उसके बाद ड्राइंग का कोई प्रोसेस नहीं है, या फिर दैट इज? हम लोग सन ड्राई कर देते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो बेनिफिशियल है। तो सन ड्राई करने के बाद दैट इज लाइक गुड टू यूज। सन ड्राई में सारा मॉइस्चर और वो सब भी खत्म हो जाता है, और जो भी अगर कंटामिनेशन होता है तो वो भी ड्राई हो जाता है। तो वो इजिली कुड बी रन इन द मशीन। तो हम उसको ड्राई की जगह सन ड्राई करके और वो आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। सो लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी कि आप जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर आप क्वालिटी इंश्योर करते हो एंड यस। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करते हो। तो इन यस। प्रोसेस में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिकली कुछ मेजर्स लेते हो जिससे वो क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी बनी रहे प्रोडक्ट की? ओके। सो बेसिकली जो हम लोग प्रोडक्ट्स इंश्योर करते हैं, तो हम लोग उसका स्ट्रेंथ, उसका थिकनेस और उसका क्वालिटी, हम लोग एंड फर्दर डिजाइन, तो हम ये 4 चीजें हम लोग लेके चलते हैं। कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके घर में एक नॉर्मल चेयर होती है जो फोर हम्म। हंड्रेड 500 समथिंग की आती है, उस चेयर की थिकनेस बहुत कम होती है। लाइक फॉर इंस्टेंस वो एक कार्डबोर्ड की इतना थिक होती है, बट वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है इसलिए वो चलती है। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंस आफ्टर 6 मंथ्स उसका लाइफ स्पैन मतलब खत्म हो जाता है, या तो कोई चढ़ के गिर जाता है, ऑल दैट। ठीक है। बट हम लोग
जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं दैट इज क्वाइट थिक एंड क्वाइट स्टर्डी। तो उसमें ये होता है कि हम लोग एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि 5 to 10 years का लाइफ स्पैन हो प्रोडक्ट का, सो दैट वो लूप में जो रिसाइकलिंग लूप है उसको उसको उसमें जल्दी से ना आए, सो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम कि वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम बाकी प्लास्टिक को भी रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो थॉट प्रोसेस रहता है, लाइक वाइल डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट और वाइल मेकिंग समथिंग। सो इसके अंदर काफी सारी मशीनरीज यूज होती होंगी, राइट? हर यस। प्रोसेस में आपने श्रेडर के बारे में बात की, तो अपार्ट फ्रॉम श्रेडर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी विच आर यूज इन द प्रोसेस, एंड वो कहाँ कहाँ पे उन मशीनरी का यूज होता ओके, सो बेसिकली श्रेडर के अलावा अभी के लिए बेसिक 3 मशीन्स यूज होती हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बेसिकली कॉमन है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसका शेप एंड साइज थोड़ा कम ज्यादा करके उसमें ट्विक्स करते हो। सो एक होती है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूडर इज समथिंग, अगर आप 3D प्रिंटिंग आपने कभी देखा हो, तो इसमें एक कंटिन्यूसली फ्लो से नीचे मटेरियल निकलता रहता है जो जिसको हम शेप देते हैं यूजिंग लाइक दैट प्लेटफॉर्म। तो वही वही प्रिंसिपल को अगर हम बड़ा कर देते हैं तो वो एक्सट्रूडर में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें हम प्लास्टिक फीड करते हैं एक तरफ से, और दूसरी साइड से वो फ्लो मेल्ट होके वो कंटिन्यूस फॉर्म में बाहर आता रहता है। तो दैट इज समथिंग हाउ एक्सट्रूडर वर्क्स। इसके बाद सेकेंड मशीन जो बहुत बहुत कॉमन है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज समथिंग जो आपका हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन होते हैं वो सेम वैसे ही काम करता है, वन शॉट में आपका प्लास्टिक आता है बाहर। तो इंजेक्शन का बेसिक यूज ये होता है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, जैसे पॉट्स हो गए, कोस्टर्स हो गए, तो उसमें इंजेक्शन का यूज होता है। उसमें आप ऊपर से प्लास्टिक डालते हो, मतलब जो हॉपर होता है उसका, और आप उसको प्रेस करते हो और वो वन शॉट में आपका मोल्ड मोल्ड में जाके वो फिल हो जाता है, मोल्ड का शेप ले लेता है। तो दिस इज हाउ इंजेक्शन वर्क्स। एक थर्ड मशीन है जो थोड़ा नया है और मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो है शीट प्रेस। शीट प्रेस में आप प्लास्टिक, शेडेड प्लास्टिक को आप कंप्रेस करके आप शीट्स में फॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें आप शीट्स का साइज वेरी कर सकते हो, थिकनेस वेरी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर डिफरेंट शेप्स यूजिंग डिफरेंट मोल्ड्स। तो ये शेडर के बाद ये 3 बेसिक मशीन्स होती हैं जो कि यूज होती हैं टू मेक समथिंग। है? एंड इफ यू कुड आल्सो टेल अस द कॉस्ट of around these machineries. So basically, these machines, Shredder is something for 1.2 lakhs. After which, there are 3 basic machines. Injection is something around 30K. That is quite cheap and could be easily used. Apart from that, extrusion, basically extrusion and sheet press, there are different variations available, like different sizes and different capacity. So basic capacity that we go for is like medium size machine, and they both, yeah, both like cost 2 lakhs each, like the lump sum. So it was something, if you want to like go for for a very small setup, like 5 lakhs would be enough to start something. तो उस तरीके से like it could be done very easily, and like they're quite small scale and actually में a bit production friendly। तो आप कम इन्वेस्टमेंट पे आप अच्छा रिटर्न आप ट्राई कर सकते हो यूजिंग दीज मशीन्स। अपार्ट फ्रॉम मशीनरी, मुझे कितना एरिया लगेगा इफ आई हैव टू सेट अप माय ओन प्लांट ऑफ रिसाइकलिंग? सी, और अपार्ट फ्रॉम मशीन्स, सी मशीन्स के अलावा आपका जो बेसिक एरिया कंजम्पशन होता है वो होता है मटेरियल का, मटेरियल स्टोरेज। सो दैट विल डिपेंड कि आपके पास कितना मटेरियल आ रहा है रोज, कितना मटेरियल आप प्रोसेस करना चाह रहे हो, कितना मटेरियल आप स्टोर कर रहे हो। तो वो तो फर्दर डिपेंड करता है मटेरियल का, कितना मटेरियल आपके पास आ रहा है। बट आपको मशीन्स के लिए आपको हार्डली आई वुड से 15 by 15 स्क्वायर फीट या 20 by 20 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा बहुत इजीली, कि आप ये सारी मशीन इंस्टॉल करके आप काम चालू कर सकते हो। ओके, सो you have been in the business for around 4 years now, right? Yeah, more than four यस। years right? So have you seen a shift in the mindset of the consumer, like depending on the demand that you have got in the initial years and now that you are getting the demand, so क्या difference है उसके अंदर? Yes, of course, there is a shift in the consumer behavior, and it's completely dependent on the climate change that is happening right now.
तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मे बी दिस इज बिकॉज लाइक हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग आवर डे टू डे लाइफ। तो कैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं उससे क्लाइमेट पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, तो ये आजकल बहुत अवेयरनेस लोगों को आ गया है। तो फॉर इंस्टेंस आजकल लोग ट्री ज्यादा प्लांट कर रहे हैं, या फिर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ज्यादा वो कर रहे हैं, ट्रैक हो रहे हैं। तो इस तरीके से सेम हमारे उसमें भी है कि जो पहले मशीन्स का रिक्वायरमेंट आता था वो थोड़ा कम था एज कम्पेयर टू जो अभी आता है। तो हम्म। इस तरीके से जो प्रोडक्ट, अगर जो प्रोडक्ट की बात करें तो लोग एक्चुअल में ऐसे प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा लीन हो रहे हैं जो कि ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग लाइफ स्पैन है, या फिर जो कन्वेंशनल आइटम है उसको उसका ऑल्टरनेट। फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ वुड यू कैन गो फॉर अ प्लास्टिक थिंग, ताकि एक पेड़ कम कटेगा, सिंपल। तो इस तरीके से लोगों का माइंड चेंज हो रहा है, और हाँ लोग ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि एक मतलब एक इम्पैक्टफुल बेसिकली लाइफ स्पैन वो कर पाए, कि जितना कम इम्पैक्ट हम लोग एनवायरमेंट पे डालें थ्रू थ्रू आवर डेली प्रैक्टिसेस। तो उस तरीके से काम हो रहा है। तो पहले से काफी फर्क है चीजों में। राघव, कुड यू ऑल्सो हाईलाइट कि राइट नाउ आपकी जो टीम है वो कितनी बड़ी है? करंटली लाइक इन टोटल वी आर अराउंड 15 पीपल, जिसमें से देर आर टू फाउंडर्स, मी एंड देर वन मोर माई पार्टनर इज शोभित। So we are the founders of this thing, and after which there are people at several levels. तो उस तरीके से हम लोग लमसम में अराउंड 15 पीपल हैं, और वो कम ज्यादा होते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन या डिमांड। डिपेंडिंग ऑन द वर्क। यस। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी का कि इज द बिजनेस प्रॉफिटेबल? रिसाइकलिंग बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है इफ अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट इट? बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, एंड एक्चुअल में बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। मतलब दिस अ ट्रेंड गोइंग ऑन, एंड वो ट्रेंड अभी बढ़ता जा रहा है कि आप जो भी आपका सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, हम लोग एक्चुअल में उसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय रिसाइकलिंग द प्लास्टिक एंड बाय गेटिंग लाइक एक चेंज ट्राई करके, लाइक टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। उस तरीके से हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास ज्यादा ऑल्टरनेट, हम लोग जो है हम लोग कन्वेंशनल प्रोडक्ट का एक ऑल्टरनेट ऑफर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस लोग आरसीसी या फिर वुड का बेंच लेते हैं या मेटल का बेंच लेते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग मोर मोर सस्टेनेबल और बेटर ऑप्शन देन द कन्वेंशनल थिंग जो आजकल मार्केट पे है। तो बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है ऑफ कोर्स। और अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो आई वुड से दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि आगे जो है वो और ज्यादा लाइक चीजें बढ़ेंगी इस मामले में। और एक और सिंपल चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि वेस्ट, हम लोग बेसिकली जो वेस्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो वेस्ट पे काम कर रहे हैं, कुड बी एनी वेस्ट। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। तो आपके पास कभी रॉ मटेरियल का डेफिशिएंसी नहीं आएगा, कभी आपके पास डिमांड का वो नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम एक सिंपल सा मैं वो देता हूँ कि आपका मोस्ट ऑफ द चीजें डिपेंड करती हैं जो आप प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो सामने वाले को। So it should be something that is something different, what is conventionally available in the market. आप जब कन्वेंशनल की बात कर रहे थे तो यू मेंशन्ड अबाउट आरसीसी। व्हाट इज आरसीसी? RCC is cement, सीमेंट बेंचेस जो होती हैं, बेसिकली RCC के स्ट्रक्चर्स बनते हैं स्मॉल स्मॉल, जो बेसिकली मेटल, या फिर वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट ऑप्शन है। RCC जो होता है, मेटल जो होता है, लेकिन उसकी लाइफ हार्डली 2 साल होती है। 2 साल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। तो वो या तो जल्दी टूट जाता है, या उसको बहुत जल्दी लाइक एनवायरमेंटल इफेक्ट हो जाता है, वो हो जाता है इधर, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है, बट वो सबसे चीपेस्ट है। तो वही है कि जितना आप बेटर ऑप्शन जाओगे उतना आपको बेटर लाइफ स्पैन या बेटर क्वालिटी मिलेगा। तो वो RCC में सबसे कम होता है, सीमेंट बेंचेस से होते हैं। सो राघव, कुछ प्रॉब्लम्स प्लास्टिक को भी ओपन में लगाने से आती होंगी, राइट? सो व्हाट आर हम्म। दोज प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर यू मिटिगेटिंग दोज प्रॉब्लम्स? जैसे लेट्स से आपने कोई बेंच लगाई, वो ओपन में लगा रखी है, एक पार्क में लगा रखी है, तो व्हाट वुड बी द
potential problems and harmful things that could happen to that bench and the environment surrounding that? आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बेंच वहाँ पे जस्ट वहाँ पे है। और वो प्रॉब्लम तब है अगर वो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है इन एनी वे। बट उसका सिंपल यूज है कि देखो प्लास्टिक इज समथिंग जो वेदर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपका कोई पैकेट या कोई बॉटल आपके छत पे पड़ी हुई है तो वो साल भर 2 साल बाद या फिर 10 साल बाद भी वो वहीं पड़ी रहेगी एज इट इज। तो उस तरीके से उसमें होता है। अदरवाइज प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक में बस एक डिग्रेडेशन होता है कि वो यूवी से वो उसका कलर फेड होने लग जाता है और उसका डिग्रेड हल्का सा उसमें स्ट्रेंथ में उसके वीकनेस आ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली वी यूज थिक लेयर्स लाइक थिक स्ट्रक्चर्स, ताकि वो डिग्रेड हो पर उसका स्ट्रेंथ ना जाए और डायरेक्टली एनवायरनमेंट को ऐसा कोई हार्म नहीं करता है। बट जब तक उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई उसको काट रहा है या कोई उस पर छिड़खानी कर रहा है या बहुत ज्यादा उसके साथ लाइक बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अंटिल देन उसको ऐसा कुछ हार्मफुल इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता एनवायरमेंट को। And what is the life cycle end for a carbon fusion product? See, lifespan that we target is something around 5 to 10 years. Like for a Hmm. smaller product, 5 years is something that we target. For a larger product, for instance, for a bench, we try for a 10 years thing. And for that, we test our products. Like we lab test our products कि उसका degradation जो है जो किस हिसाब से है। तो इस तरीके से we try to design our product so that it could go up to 10 years. So that like have a longer shelf life and all those things. तो इस Hmm. तरीके से जो कार्बन फ्यूजन है वो डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम द अदर कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है या फिर फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। So what after 10 years? Let's say कोई bench है 10 years हो चुके हैं तो after 10 years what will happen to that bench? It can come again back into the recycling cycle. And the thing is like after 10 years also it will be that valuable like uh, like it was before 10 years। तो वो उसका वैल्यू उतना ही होगा, इधर वो 1 से 2% डिग्रेड हुआ होगा। तो कोई भी रिसाइकलर या फिर हम खुद भी उसे एक्सेप्ट करेंगे और हम उसको दोबारा रिसाइकिल करके और किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस सोसाइटी में उसको भेज देंगे। So now we'll move on to the next section. Okay, what is the future of recycled plastics and how can a person start a business in the same domain? ठीक है, तो firstly I would like to know कि what are the trends that you are seeing right now which you think कि ये आगे भी आएंगे या फिर what are the new trends that will be there in the future? सी अभी हो क्या रहा है कि बेसिकली एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा प्लास्टिक हो गया है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कन्वेंशनल मेथड्स को थोड़ा सा ट्वीक करके हम लोग प्लास्टिक के साथ काम करना चालू करें। फॉर इंस्टेंस जो स्ट्रक्चर्स बनते थे वो स्ट्रक्चर्स जो वॉल होती थी आजकल 3D प्रिंटेड वॉल्स बन रही हैं या Hmm. फिर प्लास्टिक ब्रिक्स बन रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ये ट्रेंड चला हुआ है कि इस तरीके से हम लोग जो वेस्ट प्लास्टिक है जो कि एक्चुअल में वेस्ट नहीं है, जस्ट अ रिसोर्स जिसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए या फिर एक स्मॉल टर्म में उसको बेनिफिशियल करने के लिए हम उस चीज से कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अगर वुड की जगह अगर हम प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे फॉर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम वुड को रिप्लेस कर देंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग वेस्ट को यूज करके लाइक स्पेसिफिकली प्लास्टिक को यूज करके हम उसको रीयूज कर पाए समहाउ, सो दैट एक वैल्यू एडिशन क्रिएट हो मार्केट में। और अगर वेस्ट को क्रिएट करके आप किसी और फॉर्म में वैल्यूएबल बना पाओ तो उससे बेटर और कुछ नहीं है कि वो एक तो अबंडेंस पे है और सेकंड थिंग कि उसका जो कॉस्ट होगा वो शायद कम होगा एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल मटेरियल्स और वो ज्यादा लाइफ स्पैन या फिर एक एक +1 एक देगा अगर आप कन्वेंशनल से बनाना चाहोगे तो। Okay. So
व्हाट ऑल आर द एरियाज जिसके अंदर हम लोग ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं? या प्लास्टिक इज समथिंग, मेकिंग समथिंग विद प्लास्टिक इज लाइक इमेजिनेशन, कि जितना आप इमेजिन कर पा रहे हो प्लास्टिक उस फॉर्म में जा सकता है। इट जस्ट दैट कि आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे वो कितना सूटेड है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं पूरा, जैसे अगर कोई ओपन एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अगर मैं उस एरिया को उसके अंदर से पूरा प्लास्टिक कवर कर दूं, देन इट वुड बी वेरी हार्मफुल और वेरी सफोकेटिंग। ये प्लास्टिक जब हीटअप होता है तो थोड़ा बहुत वो जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा हीटअप ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू जब आप अदर उसमें जाते हो। बट अगर आप उसको कंबाइन करके यूज करो विद डिफरेंट मटेरियल्स, तो मे बी आप एक ऐसा स्ट्रक्चर दे पाते हो जो कि बैलेंस्ड क्रिएट करेगा एक। फॉर इंस्टेंस, आपने बाहर आउटसाइड वॉल में प्लास्टिक यूज किया बट इनसाइड आपने एक नेचुरल मटेरियल यूज किया, सो इट विल इट्स वेदर प्रूफ मटेरियल, अलॉन्ग विद दैट आपको स्ट्रेंथ भी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, लाइक विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो प्लास्टिक से एक्चुअल में कुछ भी बन सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है। तो ऐसे इस तरीके से था। सो डू यू ऑल्सो थिंक कि जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम मेन स्ट्रीम एंड वी कैन सी पीपल यूजिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन देयर डेली लाइव्स? यार, एक्चुअली आई वुड से यस, क्योंकि क्योंकि अगर आप रिसाइकिल प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, देन यू आर जस्ट adding something to what these guys start trying, like अगर आप वो वेस्ट से अगर कोई भी चीज बना रहा है, तो वो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स दैट कॉज। तो इन अ वे, अगर अगर ये चीज लोगों को समझ में आएगी या फिर ये चीज आ रही है समझ में, तो लोग आजकल, अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई फॉर समथिंग, कि अगर कुछ रिफर्बिश होता है या रिसाइकल्ड होता है तो लोग उसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू न्यू, क्योंकि न्यू से एक वही डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। और हाँ, और इस तरीके से मतलब प्रेफर करते हैं लोग कि हाँ, अगर आप किसी पॉट पे अगर आप लिखा हुआ देखते हो कि दिस इज अ रिसाइकल्ड पॉट, या फिर अगर आप बॉटल भी देखते हो कि दीज बॉटल्स आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक। और अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि कोको कोला ने अपना जो प्लास्टिक है वो 70% स्टॉक जो है वो रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया था। सो इन अ वे दैट दिस इज गोइंग फॉर द लाइक मेन स्ट्रीम ओनली, कि वो अपना ही टेक बैक करके और उसको ही रिसाइकिल करके सेल आउट कर रहे हैं। तो वो कंपनीज खुद ही कर रही हैं तो मेन स्ट्रीम में तो आएगा ही वो ऑब्वियसली। So moving on, कि let's say if I am a person who wants to start a business, start अच्छा, a similar business, so what are the key steps that I need to take before starting a business? क्या क्या processes मेरे को समझने चाहिए before stepping into the business front? ओके। सो बेसिकली अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन देर आर फ्यू, लाइक फर्स्ट थिंग यू कैन, व्हाट यू कैन डू सिंपली इज सर्च ऑन द इंटरनेट। बेस्ट थिंग, ठीक है। इंटरनेट से आप चीजें सीखो। इंटरनेट से चीजें सीखने के बाद आप वहाँ पे स्टडी करो। फिर उसके बाद आप सिमिलर टाइप ऑफ लोगों से मिलो, लाइक लाइक पीपल फ्रॉम द सेम सेम बैकग्राउंड। उससे आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्लास्टिक के साथ काम करना डिफिकल्ट नहीं है। इट्स क्वाइट इजी, बिकॉज प्लास्टिक का जो फंक्शनिंग है बहुत ही सिंपल है। प्लास्टिक को सिर्फ मेल्ट करके एक रिफॉर्म करना होता है। उसमें वो टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, तो उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। बट आप अगर पहले नॉलेज गेन करके उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप बहुत इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि आप प्रोडक्ट डिसाइड करो कि क्या प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट इज समथिंग जो आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम अदर पीपल। मतलब कितना आप क्रिएटिव हो सकते हो प्लास्टिक के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट ही डिसाइड करता है। और उसके अलावा आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा।
आप एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप 5 लाख के साथ स्टार्ट कर सकते हो बहुत सिंपली। आपको स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। एंड आप स्टार्ट स्मॉल। इफ यू गेट अ गुड डिमांड या फिर आपको अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है देन यू कैन गो बैक। तो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि go like a snail not like a snake. So this is how you can start. तो इसमें अगर आप अपना कुछ इनिशियल जो एक्सपीरियंस है वो ऐड करना चाहें कि किस तरीके से आपने नेविगेट किया था इस पूरे प्रोसेस को व्हेन यू स्टार्टेड आउट। Yes. यार मेरा नेविगेशन एक्चुअल में उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, तो मेरा नेविगेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहा था। सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल वर्कशॉप एट माय रूट। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही स्मॉल स्केल मशीन्स वो करी थी, जो कि मेरे को बेसिकली जो एक सपोर्ट मिला था वो एक कम्युनिटी के थ्रू मिला था। दैट इज कॉल्ड प्रीशियस प्लास्टिक। सो बेसिकली, और जो मैंने एक्चुअल में जो मेरा शुरू करने का जो वो भी था, वो भी वहीं से मैंने कि वहाँ पे दे हैव सिंप्लीफाइड द प्रोसेस, जो कि रिसाइकिल कैसे होता है प्लास्टिक या कैसे काम करता है। तो बेसिकली उन लोगों अ, उन लोगों के पास डिजाइन थे या फिर उन्होंने चीजें ओपन सोर्स करी थी और बहुत लोग कनेक्टेड थे वहाँ पे। सो बेसिकली उसके थ्रू मशीन्स बनाई थी मैंने। मशीन्स बना के आई स्टार्टेड माई R&D विद अ वेरी स्मॉल मशीन्स। एक श्रेडर था, एक एक्सट्रूडर था। तो इस तरीके से आई स्टार्टेड रिसाइकलिंग प्लास्टिक, बट आई नॉट रिसाइकलिंग प्लास्टिक बट टू डू माई R&D थिंग कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद ये होने के बाद आई रियलाइज कि इतना इजी नहीं है प्लास्टिक रिसाइकलिंग, क्योंकि हम्म। बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं था मेरे को। ये था कि प्रॉपर आपके पास सप्लाई होना चाहिए प्लास्टिक का और प्रॉपर डिमांड होना चाहिए। आपके पास एक ठीक ठाक स्पेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ डिसेंट स्पेस चाहिए, जिसमें आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सको। तो मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट मेरा खुद का था सारा। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड सेलिंग मशीन्स टू स्टूडेंट्स एंड टू सम लैब्स जिनको R&D करना था। तो सिमिलर टाइप ऑफ मशीन्स आई स्टार्टेड सेलिंग दोस मशीन, जिससे मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया वहाँ से। सेविंग करने के बाद उसको मैंने अपना जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसमें लगाया धीरे धीरे, और फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी रही थी उस टाइम पे। सो अगर आप अपने ही प्रोसेस को नेविगेट करो और उसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हमें निकाल के बताओ कि दीज आर द 5 स्किल्स, ये तो होनी चाहिए, इसके अलावा और हो तो बेटर है, बट ये 5 स्किल्स या ये 4 स्किल्स तो एटलीस्ट चाहिए किसी बंदे को टू स्टार्ट अ बिजनेस। यार more than a skill, uh, you need the spirit to start a business, because skills could be learned, है ना? You need consistency, and you need you need motivation to keep on going even after failures. So skills won't matter much, मतलब skills आते हैं सीख से। इट जस्ट दैट कि आप उसको शुरू करके आप उसको कॉन्स्टेंटली आप उस पर लगे रहो और हम्म। उसको ट्राई करते रहो कि हाँ अब होगा अब होगा अब होगा। तो इवेंचुअली दैट थिंग हैपेंस। So it was more of that. सो इसके अलावा इज देयर एनीथिंग अबाउट कार्बन फ्यूजन इज डूइंग राइट नाउ दैट यू वुड लाइक टू शेयर एंड टेल द पीपल अबाउट। Yeah, Carbon Fusion is like keep on doing new things. So Carbon Fusion अभी बहुत सारी चीजें कर रहा है। Carbon Fusion एनजीओ के साथ मिलके जो प्लास्टिक का प्रोसेस है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, उसको डिसेंट्रलाइज करने में हेल्प कर रहा है। कार्बन फ्यूजन अलग अलग जगहों पे, रिमोट लोकेशन स्पेसिफिकली हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऐसी लोकेशंस पे जाके यूनिट सेटअप करें जहाँ पे कोई और यूनिट नहीं है दूर दूर तक, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से कार्बन फ्यूजन काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कार्बन फ्यूजन नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है। नए नए प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब है कि कुछ चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग यूज कर पाए। मतलब फॉर इंस्टेंस
हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, अभी शुरू में ही किया है हम लोगों ने, हम लोग ट्राई करना चाहते हैं 3D प्रिंटेड वॉल्स। बट हम लोग अभी काम कर रहे हैं रिसाइकल प्लास्टिक ब्रिक्स पे। क्या? तो उस तरीके से, हाँ, तो उस तरीके से हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल होता है, हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद प्लास्टिक, क्योंकि जो कन्वेंशनल मटेरियल है दैट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। जब सीमेंट बनता है या उस तरीके से होता है तो वो ऑलरेडी बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम उसको इजी करना चाह रहे हैं, या फिर इजी या उसका कोई कन्वेंशनल ऑप्शन देना चाह रहे हैं जो वेस्ट से बना हो, या फिर एक तरफ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, दूसरी तरफ एज अ रिसोर्स यूज हो रहा हो। तो इस तरीके से कार्बन फ्यूजन कुछ ना कुछ नया कर रहा है। तो ऐसा चल रहा है हमारा, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सो इफ अ पर्सन वांट्स टू कांटेक्ट यू और कार्बन फ्यूजन, वो किस तरीके से कर सकता है? वेरी इजी टू कॉन्टैक्ट अस, हमारा इंस्टाग्राम पेज है जो मैं डायरेक्टली हैंडल करता हूँ। इट्स कॉल्ड द कार्बन फ्यूजन करके। एंड देयर इज आवर ईमेल दैट यू कैन यूज, लाइक आई आल्सो लुक फॉर दैट, द कार्बन फ्यूजन एट द रेट Gmail। तो हम लोग बहुत इजीली आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप, अगर अगर आप थोड़ा और समझना चाहते हैं हमारा काम, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमारे फीड्स देख सकते हैं, जो कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा हाउ दीज थिंग्स वर्क, या फिर किस तरीके से पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं प्लास्टिक की, जो आपने शायद कभी एक्सप्लोर नहीं की होंगी। तो इस तरीके से हम रीच कर सकते हैं। Great, Raghav. Thank you so much for doing this and being the guest. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सो लास्टली, अगर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, इफ यू फेल्ट कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो रह गया, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, तो वील क्लोज आफ्टर दैट। पता नहीं। ओके, सो सही था, इट वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प। मेरे को थोड़ा बोरिंग ज्यादा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि सब चीजें टू द पॉइंट थी, कुछ फन नहीं था। ठीक है, कल ज्यादा बेटर था। तो या तो है ना, तो कल कल ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था, कल बहुत जेन्युइन कॉन्वर्सेशन थी, है हम्म ना। आज थोड़ा मेकअप सा था, बट हम्म ठीक है, इट वाज समथिंग कि वो तो हमारा, हमारे क्यों नहीं है। या तो है ना, इट वाज मोर ऑफ दैट, बट ठीक है, इट वाज शॉर्ट एंड क्रिस्प। बाकी नई चीजें ठीक थी, चीजें टू द पॉइंट थी शायद, और ठीक थी मेरे हिसाब से। बट आई वुड सजेस्ट कि, नहीं, आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट टाइम किसी के साथ अगर ऐसे करोगे, देन गो फॉर द फर्स्ट फर्स्ट थिंग, लाइक फर्स्ट मीटिंग शुड बी द वन विच शुड बी रिकॉर्डेड, या एंड विच शुड अच्छा। बी फॉर्मल, क्योंकि क्योंकि सेकेंड टाइम में बंदा थोड़ा माइंडसेट लेके आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, बट फर्स्ट टाइम में वो जो हम्म कॉन्वर्सेशन होगी दैट वाज मोर जेन्युइन। या तो ट्राई फॉर दैट फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो थैंक यू मजा फॉर द आएगा उसमें। फीडबैक। हाँ, नहीं एक्चुअली चलो। यार, जस्ट हम्म एक जेन्युइन हम्म फीडबैक, ठीक है, बट ट्राई करना वो चीज। चलो, थैंक यू सो मच, राघव।